हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। ये चैप्टर जो है 23 है, जिसमें हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस के विषय में चर्चा करेंगे, यानी पर्यावरण जागरूकता के विषय में। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस में पढ़ते हो। अगर उनके सिलेबस में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपको पता ही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है समझाने की कोशिश किया जा रहा है, प्लस ये जो होता है आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर environment awareness, their political science chapter, their topic arrive here, national and international community to the protection of environment. There is the most important, there are protection of environment for the national and international level. The growing awareness about the environmental protection has resulting in a new measuring across the world. The later Prime Minister, Mr. Indira Gandhi, was the only head of the government attending to 1972 Stockholm Conference, which are called the UN Conference on Human Environment. The Rio Conference 20 years later was called to the UN Conference on Environment and Development. It was the Mrs. Indira Gandhi, who is the first appointment of the poverty was the greatest is polluted, and unless it was ultimated to through their national and international effort, it was the fertilizer to the take about to protection and planet for environmental disaster. UNDP, their World Bank and other institutions of UN system are now advocating to the elimination of poverty as a central task in a stable development. In needed environment and development policy are as seen as complementing to each other. The conflicts between the requirement of the long-term environment interest and the intermediate to the completion of development is a continuity to be resolved. But only world order cannot be a suitable or 3/4 of it is a population continue to live in a poverty. Environmental right and developmental right together continuity to the democratic and human right of all the people of the world. The Montreal Conventions and the Convention and the Climate Change, Biodiversity and the Forest adopted at a Rio are important landmarks in the world movement for the sustainable development and environmental protection. India has accepted these conventions and taking to the systematic measures in implement them. An environmental action program funded by UNDP is under implementations. There are 31 schedules for the industrial pollution control approved by the World Bank, involving of US dollar 150 millions. On the anvils are common influence plant for there a small industry located in a custard. There is a big plant began to look at after the individually. And 17 grossly polluted industries has been to identified for environmental control within a time schedule. For content categories of industries prior to the environmental clearness in a compulsory before there can be set up. In the regard to be transport pollution apart from a conservation and measuring, the pollution-free engines are the beginning design, some of which has already been introduced for a two-wheelers
three-wheelers and some of the popular car. A national forestry plan in the process. Environmental brace as operations and brace as ecological task force has been to organized by non-government organization, mean NGO. India is a wildlife conservation project has met with the remarkable success. India has a protected network of 75 national parks and 420 wildlife sanctuary. The Tiger project has been a great success. And that India has also elaborated the law relating to the prevention of the population of water, soil, and air, and a system of environmental audit of most of industry project. Well, this is the voluntary for the most countries. India has a voluntary rule in this regard. India is also is engaged in the serious and systematic for to be development of alternative and renewable source of energy like a solar, wind, and a wave energy, which are environmental friendly. It possesses the land of the solar energy on which some significant technologically process has been made. India is taking all this is a measuring of partly with the international assistance. यदि बात यहाँ पर हम करें पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता, देखिए कहते हैं, मैं पहले ही आपको बताया था कि इसका जो है हर तरह से जो है संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील है और वचनबद्धता दिखाई जाती है, लेकिन ये सारी बातें जो होती है सिर्फ किताबों में ही नज़र आती है। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता बढ़ाने से पूरे विश्व में नए उपाय किए जा रहे हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम जो है सम्मेलन में सम्मिलित होने वाली अकेली राष्ट्र अध्यक्ष थी, जिसे संयुक्त राज्य मानव पर्यावरण सम्मेलन का नाम दिया गया था, और 20 वर्ष पश्चात रिले सम्मेलन को संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन भी कहा गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने संकेत किया कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषित फैलाती है, यानी गरीबी जो है सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, और तब इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस ग्रह की पर्यावरणीय आपदा को बचाने की जो है बात करना बेकार सी रहेगी। यूएनसीपीओ ने विश्व में जो है विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अन्य संस्थाएं अवलंबनीय विकास हेतु जो है गरीबी उन्मूलन की पैरवी कर रही है। निसंदेह पर्यावरण विकास की नीति एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी जो है दीर्घकालीन पर्यावरण हितों की आवश्यकता तथा विकास की तत्कालीन जरूरतों के बीच विवादों को सुलझाने की आज ज़रूरत है। लेकिन विश्व की कोई भी व्यवस्था जो है अवलंबनीय नहीं हो सकती है यदि इनकी 3/4 जनसंख्या गरीबी में जो है जीवन यापन करती हो। यानी जब 3/4 जनसंख्या अगर गरीबी में अपना जीवन यापन करती है तो उस देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का एक सबब बन सकता है। पर्यावरणीय अधिकार और विकासात्मक अधिकार मिलकर विश्व के लोगों को लोकतांत्रिक और मानवाधिकार का निर्माण करते हैं। मैड्रिड सम्मेलन तथा मौसम परिवर्तन पर सम्मेलन तथा रियो में जैव विविधता और जंगलों का स्वीकार किए गए प्रस्ताव अवलंबनीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय में से एक था। भारत ने सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार भी किया और उन्हें क्रियान्वित करने का उपाय भी कर रहा है। यूएनपीडी द्वारा प्रदान की गई राशि एक पर्यावरण कार्य योजना पर काम चल रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जो है स्वीकृति जो है 31 योजनाएं हैं, जिनमें अमेरिका के 105 मिलियन डॉलर की भागीदारी है। आरंभ छोटे उद्योग से किया गया जो एक ही स्थान पर स्थित था। बड़े उद्योगों की व्यक्तिगत और सतत पर देखभाल की जा रही है। कहते हैं निश्चित सीमा में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों को पहचान कर ली गई। कुछ विशेष उद्योग को स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। वाहनों के प्रदूषण के लिए संबंध में परिवर्तन करने के उपायों को अतिरिक्त प्रदूषण मुक्त इंजन निर्माण किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले से ही 2 पहिए, 3 पहिए और अन्य लोकप्रिय कारों में प्रयोग किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन की योजना पर काम चल रहा है और गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा पर्यावरण विग्रेड वनों की कटाई के विरुद्ध विग्रेड और पारिस्थितिक कार्य बल संग्रहित किए गए हैं। भारत के वन जीवन संरक्षण की कार्य योजनाओं के जो है भरपूर सफलता मिली है और भारत में 75 राष्ट्रीय उद्यान है और 421 वन्य जीवन अभयारण्य सुरक्षा ढांचा है। टाइगर कार्य योजना ने काफ़ी सफलता प्राप्त किया है। भारत में जल, मृदा और वायु प्रदूषण रोकने के लिए काफ़ी कानून है तथा अधिकांश उद्योग के पर्यावरण की जांच की व्यवस्था भी की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि भारत में जल, मृदा, वायु प्रदूषण के लिए रोकने के लिए बहुत बड़ा कानून बनाया गया है।
अगर बहुत बड़ा कानून बनाया गया होता तो गंगा जो होती प्रदूषित नहीं होती, यमुना जो होती आए दिन प्रदूषित होती है तो वो नहीं होती। तो कहते हैं भारत में जल और मिट्टी और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। जबकि कई देशों में यह जो है कुछ अधिक से अधिक जो है सुरक्षित है, परंतु भारत में ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन और तरंगे से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने के गंभीर और व्यवस्थित प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण हितैषी भी है, और सौर ऊर्जा पर अधिक बल भी दिया जा रहा है और इस दिशा में कुछ प्रौद्योगिक प्रगति भी की गई है। भारत इन सब उपायों का अधिकांशिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काम कर रही है। देखिए भारत भी बहुत ही अग्रसर है इन चीज़ों में, लेकिन कहते हैं सरकार करे भी तो क्या करे, जब कहते हैं इनको संरक्षण करने वाले व्यक्ति ही नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं सरकार कितना जिम्मेवारी उठाएगी, जब इंसान स्वयं ही समझदार नहीं बनेगी पर्यावरण संरक्षण होना संभव नहीं है। The next topic is the most important here are some measures taken by the Indian government to the check environmental pollution. There is a most important topic arrive here. A first year environmental code. A special code are began set up to ensure speedily justice of the poor against the factories that have polluted the environment. There is a most important false here. Environmental friendly product. The government is setting a establishment of standing for all product in the market. Those which meet this standard of the production and the perform will be given to a label of excellence like a SI mark. There is also false. The unleading of petrol. There is an unleading petrol here as refineries are began to proceed to make their petrol lead free. There is also is a most important false. India's petrol has a highest lead contents and which create a major pollution through the automobile. The next point is a ban of the harmful pesticide. There is a most important false here of harmful pesticide use of very large amount for the Indian agriculture. There are 8 chemical pesticides of DDT and BHC is adenine and methylene are the main culprit that has been to the isolated, and there are non plan to replace them with the say biopesticide. And the next year National Waste Management Counseling, the main task is to convert to 40 million ton of the flash that lies of mountain near a thermal power plant into brick of city and garbage into energy of or sewage into fertilizer. And next year a public liability of insurance, the make of the mandatory for all companies to take out of public liability insurance prepaid of 48 hours. The next topic is the pollution by the motor vehicle. Anti-pollution measuring against the motor vehicle are began strictly in force. Vehicle not be endurance to be standard prescribed or fined heavier and many even to the ask to be off the road. The next year hotel near seashore. Action has been taken to against a large number of hotels which is the encourage of the beach as a flagrant violation of law. And next year, National River Action Plan. There is here is a National River Action Plan. The proposal is to be a set of the National River Authority which will be planned policy for water use and waste management at the national level. There is a most important here. The next area is Solar Energy Commission. Since there is an energy sector is a major polluter, the idea is to be create a decentralization energy at the village level instead of multiplying the is a mainstream producer. And the next year is a no smoking in a public place. A ban in proposed to smoking in a public place. The Delhi government has taken to the lead in this direction. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम पॉइंट जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं। देखिए भारत सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ ये किताबी बातें होती है, सच्चाई में वो सारी रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ाते हुए जो है आम नागरिक देखने को मिल जाएगा, या बड़े बड़े लोग भी इसको धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। सिर्फ आप जो उस समय क्या करोगे, कोसोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली बात तो यही आता है कि पर्यावरण
अदालतें। देखिए, पर्यावरण के लिए बहुत सी अदालतें बनाई गई है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाले फैक्ट्रियों के विरुद्ध तेजी से न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है। अगर ये बात मैं अगर सच मानूं कि इसमें जो है पर्यावरण अदालतें बनाई गई है और बहुत जल्दी न्याय दिलाई जाती है, तो क्या आज जो नदी इतनी प्रदूषित हो रही है और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकल रही है, क्या इसके लिए अदालत नहीं है? क्या इस पर अदालत ने कोई रिएक्शन नहीं लिया? कहते हैं दिन प्रतिदिन जो है नदियाँ दूषित होती चली जा रही है। तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो कई मानने में कहते हैं ये अपने आप को संतुष्टि देने के ही जो विचारधारा से लिखी गई है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि पर्यावरण हितैषी उत्पाद। देखिए, हितैषी सरकार बाजार में बिकने वाले उत्पादों के लिए जो है सख्त नियम लागू कर रही है। इन मानकों पर जो है खरा उतरने वाले उत्पादों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र जैसे ISI मार्क दिया जाता है। दोस्तों, ये बात भी आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या आपको जो भी सामान बाजार में मिलता है क्या सभी जो है ओरिजिनल होते हैं? आपको मालूम ही होगा कि आज डुप्लीकेट की भरमार है। आज जिस दुकान पे चले जाओ, जहाँ चले जाओ, उसमें आधे से अधिक प्रोडक्ट जो होंगे डुप्लीकेट होंगे। फिर सरकार यहाँ पर क्यों कह रही है कि हम ISI मार्क लगा के जो है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाने के प्रमाण पत्र देंगे? कहते हैं अगर सरकार ज़मीनी हकीकत में अगर चेक करे तो इसका जो है पूरा पोल खुल जाएगी। और आपने आए दिन टीवी में न्यूज़ में देखते ही होंगे कि आए दिन जो है सरकार लाखों टन जो होती है घी पकड़ती है, लाखों टन जो है डुप्लीकेट सामान पकड़ती है। तो इसको मैन्युफैक्चर करने का जो है परमिशन किसने दिया? इतना इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री किसने लगाने के लिए परमिशन दिया? तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सिर्फ एक मिथ्या बात साबित हो रही है। उसके पश्चात आता है पेट्रोल को शीशा युक्त करना। देखिए, ये बात भी कई जगहों पर मिथ्या सिद्ध ही होगी। अगर आपने पेट्रोल भरवाने जाते होगे तो उसमें जो है लीड होना एक स्वाभाविक बात बन गई है। तेल शोधक कारखानों में शीशा युक्त पेट्रोल बनाने की प्रेरित किया जा रहा है और भारतीय पेट्रोल शीशा की मात्रा अधिकतम होती है, जो कि मोटर गाड़ियों के लिए माध्यम से अधिक धुआं फैलाते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं आज के समय में देखोगे तो ये बात भी काफ़ी हद तक सिद्ध नहीं होता है कि आज जो है पेट्रोल जो है शीशा मुक्त हो। कई जगह पेट्रोलों पर भी शीशा मुक्त जो है पेट्रोल डालने का प्रावधान है और इससे जो है प्रदूषण फैलना भी एक आम सी बात बन गई है। उसके बाद है हानिकारक कीटनाशक का प्रतिबंध। देखिए, ये बात भी कई मानने में झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े किसान जो होते हैं पेस्टिसाइड ही यूज़ कर रहे होते हैं और ये धड़ल्ले से यूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये सरकार भी जानती है, लेकिन इसमें कानून भी बनाई गई है। कहते हैं 8 रासायनिक कीटनाशक जैसे DDT हो गया, BHC हो गया, एड्रीन और मेथिलीन शामिल है को बाजार से हटा दिया गया तथा इसके स्थान पर जो है सुरक्षित जैविक कीटनाशक लाने की योजना है। देखिए, कहते हैं DDT जो है आज के समय में भी डाला जाता है और हमेशा डाला ही जाएगा। कहते हैं उत्पादन के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। सरकार यहाँ पर रूल रेगुलेशन बेसिकली बना दिया है कि इसको जो है हटा दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध तो लिफाफे में भी लगाई गई है, प्रतिबंध तो शराब पे भी लगाई गई है। तो क्या ये बंद हो चुके हैं? नहीं। इसका जो ज़मीनी हकीकत आप सबको पता है, इसमें बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, देखिए इसका मुख्य कार्य 40 मिलियन टन जो है फ्लाइस ऐश को जो है कि थर्मल प्लांट के निकट पहाड़ों के रूप में पड़ी है, ईंटों तथा शहर के कूड़ा करकट के ऊर्जा में और सीवर के मल को उर्वरक में परिवर्तन करना। देखिए, ये बात बताई जा रही है कि राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में सुना था कि दिल्ली में जो है कूड़ा का ढेर चारों तरफ लगा हुआ है और जो वहाँ की सरकार है वो पिछले सरकार पे दोष थोप रही है। तो ये सच्चाई क्या है? क्या ये बात झूठ है कि सच है? ये आपसे अधिक अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि कूड़ा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार हो रही है और सरकार जो है एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उसके पश्चात है पब्लिक प्लास्टिक इंश्योरेंस। देखिए, जन दायित्व बीमा, इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए 48 घंटे में पब्लिक जो लायबिलिटी इंश्योरेंस का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर वाहन द्वारा प्रदूषण, कहते हैं मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध प्रदूषण विरोधी अभियान को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है और निश्चित मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। अगर ये बात अगर सच है तो अगर आप देखिएगा कोई भी रोड पे जाके तो वहाँ पर कोई ना कोई जो है वाहन प्रदूषण फैलाते हुए नज़र आएगा। तो वहाँ पर पुलिस जो है आपको ट्रैफिक पुलिस भी नज़र नहीं आएगी, न सरकार के कोई रूल रेगुलेशन नज़र आएंगे। ये लोग धड़ल्ले से जो है पोल्यूशन फैला रहे होते हैं और सभी जो है आंखें बंद करके देख रहे होते हैं। दोस्तों, मेरा यहाँ पर इन शब्दों का खंडन करना नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि सरकार इस पर जागे और जो है सख्ती से कदम उठाए, न कि किताबी बातों पर जो है
लोगों को दिलासा दे। कहते हैं कि दावी बातों का आज दिलासा देने का समय नहीं है, आज सख्त सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सके। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आने वाला भविष्य के लिए भी जो है कहते हैं स्वच्छ हवाएं और अच्छे वातावरण नहीं मिल पाएगा। अगली पॉइंट है समुद्री तट के निकट होटल। ऐसे होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है जो कानून की अनदेखी करते हुए समुद्री तट पर अतिक्रमण करते हैं। क्या ये बात आपको लगता है कि सत्य सिद्ध है, सत्य बात बताई गई है? आज बड़े बड़े होटल जो है समुद्र के किनारे ही बनाई गई है और वहाँ पर धड़ल्ले से अतिक्रमण होता है। इवन कि सरकार के जो है नाक के नीचे ही होता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है आंख बंद करके बैठी होती है, क्योंकि उनके पास जो है पैसे की ढेर पहुँच जाती है। तो ये आप भी समझदार हो और हर कोई जानता है कि समुद्री तट के निकट जो है होटल में जो है कब कई मायनों में जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी का कार्य योजना। देखिए, राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रयोग एवं कूड़ा प्रबंधन के लिए नीति बनाएगा। ठीक है, देखिए नीति बनाने की जो बात बताई जाती है वो बहुत मुझे मिथ्या इसलिए लगती है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। आपने देखा होगा कि यमुना नदी जो है सबसे अधिक प्रदूषित है, वहाँ तो कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। गंगा का भी हाल वही है, यमुना का भी हाल यही है, सबका हाल वही है। तो यहाँ पर जो है ये बताते हैं कि हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? क्या सिर्फ ये किताबी बातें हैं? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, बहुत बड़ी सोच वाली बात है कि सिर्फ ये बातें जो होती है इसमें योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन योजना का रिगार्डिंग कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। यदि बात करें यहाँ पर सौर ऊर्जा आयोग की, तो कहते हैं ऊर्जा स्रोत प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारक होती है, यानी इसलिए जो है मुख्य ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के स्थान पर ग्रामीण स्तर पर जो है विकेंद्रित ऊर्जा निर्माण की योजना बनाई गई है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध। देखिए ये भी बात मुझे बहुत मिथ्या ही सिद्ध लग रही है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने का प्रस्ताव रखी गई है और सब जगह लगाई भी जाती है। धूम्रपान करना मना है, थूकना मना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि वही सब रूल रेगुलेशन का धज्जियां उड़ रहा होता है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है एवं इसे लागू भी कर दिया है। कहते हैं लागू तो हर जगह पे है, हर जगह सिस्टम है, लेकिन इसका लोग माने तब ना। मैं यही बात यहाँ पढ़ने और समझने से यही बात साफ हो जाता है कि सरकार ने रूल रेगुलेशन तो बनाई है लेकिन सख्ती इसमें नहीं दिखाई है। लेकिन यहाँ पर सरकार को दोष देना कदाचित उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें जनता को भी समझदार बनना जरूरी है। मान लीजिए कहीं निषेध है, लिखा हुआ है कि आप वहाँ पर तम्बाकू नहीं खा सकते, चाहे बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, जनता का ये फर्ज बनता है कि वहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि सरकार ने अगर रूल रेगुलेशन बनाई है तो आपको भी उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप भारत के अच्छे नागरिक कहलाओगे। तो सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन इसका पालन तो आम जनता को ही करना पड़ता है। तो आम जनता अगर जागरूक हो जाती है तो देश की भलाई सुनिश्चित भी हो जाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।